everyone, welcome back to the Galaxy of Electrical Engineering. I hope you all are doing well. So I am back with another video of power system. I hope you enjoying this series. If you are new to my channel, kindly subscribe it and don't forget to hit the bell icon for further notification. We have a Telegram group as well. I will provide link in comment section. Kindly join it to get the updates regarding new videos. Okay, so without a further ado, let's start this video. So our first question of this video is, a lossless line terminated with its surge impedance has dash. So options are flat voltage profile, transmission line angle is greater than that of actual length of line, transmission line angle is less than that of actual length of line. Option number A and B collectively. So what we have been given in this question, we have been given that there is a lossless transmission line which is terminated with surge impedance. So if I have to draw here one figure, so this is going to be our transmission line. ZS is going to be the surge impedance and we have to terminate this line with surge impedance only. But before that, I am going to write here ZL. ठीक है. So this is going to be VS and this is going to be VR. But हमें क्वेश्चन में दिया गया है that we have to terminate the transmission line with surge impedance. So अगर हमने ZL is equals to ZS substitute कर दिया, then what we are going to get? We are going to get ZL is equals to ZS. ठीक है. सो ZL का वैल्यू क्या होता है? ZL इज नथिंग बट V by I एंड ZS का वैल्यू क्या होता है? ZS इज नथिंग बट अंडर रूट L by C. ठीक है. आपको यहाँ स्क्वायरिंग करना होगा. यू हैव टू जस्ट स्क्वायर ऑन बोथ द साइड. सो आफ्टर स्क्वायरिंग यू आर गोइंग टू गेट V square by I square is equals to L by C. But you have to multiply and divide with omega on numerator as well as denominator. और यहाँ आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा ताकि आप टर्म्स को रीअरेंज कर सके. ठीक है. सो इट इज गोइंग टू बी V स्क्वायर ओमेगा C इज इक्वल्स टू I स्क्वायर ओमेगा L. So what is this value? This is nothing but QC, reactive power of capacitor, and what is this value? This is nothing but QL, रिएक्टिव पावर ऑफ इंडक्टर. ठीक है. सो आपको यहाँ नेट वैल्यू फाइंड आउट करना है रिएक्टिव पावर का. सो Q नेट इज इक्वल्स टू QL माइनस QC. सो QL माइनस QC का वैल्यू क्या मिलेगा आपको? यू आर गोइंग टू गेट 0 एज इट्स रिजल्ट. ठीक है. एंड ऑल्सो डेल V वोल्टेज ड्रॉप का एक रिलेशन है Q के साथ. ठीक है. सो वोल्टेज ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q. अगर Q 0 होगा देन वोल्टेज ड्रॉप भी हमें 0 मिलेगा. ठीक है. देन आई कैन सब्स्टिट्यूट दैट डेल V इज इक्वल्स टू 0. अगर डेल V 0 होगा दैट मीन्स VS माइनस VR इज इक्वल्स टू 0. Therefore QS is equals to VS is equals to VR. So from this हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं that sending end voltage is equals to receiving end voltage only when ZL is equals to ZS. जब हम ट्रांसमिशन लाइन को टर्मिनेट करेंगे सर्ज इम्पिडेंस से, then only we are going to get flat voltage profile. So flat voltage profile हमें कब मिलेगा? Only when the lossless transmission line is terminated with its surge impedance. ठीक है. सर्ज इम्पिडेंस से टर्मिनेट किया गया है ट्रांसमिशन लाइन को, देन वी आर गोइंग टू गेट रिसीविंग एंड वोल्टेज इज इक्वल्स टू सेंडिंग एंड वोल्टेज. ठीक है. सो ऑप्शन नंबर ए इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. So our next question is, the main consideration for higher and higher operating voltage of transmission is dash. So options are increase efficiency of transmission, reduce power losses, increase power transfer capability,
and option number A and B collectively. ठीक है. So what we have been asked here, we have been asked कि जो मेन कंसिडरेशन होता है हायर एंड हायर ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ ट्रांसमिशन का, वो क्या होता है. ठीक है. सो वी डोंट नो कि रीजंस क्या होते हैं हायर एंड हायर ऑपरेटिंग वोल्टेज का वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइमरी ट्रांसमिशन. ठीक है. बट वी हैव couple of points regarding higher and higher operating voltage of transmission. So let's check one by one. So क्या necessity होती है higher operating voltage को use करने का whenever we are talking about transmission. ठीक है. So our first point is to increase the maximum power transfer capability or steady state stability of transmission line. सो जितना ज़्यादा हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी का वैल्यू मिलेगा. इन शॉर्ट, जितना ज़्यादा हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी का वैल्यू मिलेगा. ठीक है. नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज जितना ज़्यादा हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे उतना ही कम हमें करंट मिलेगा. ठीक है. एंड करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टर साइज. So current is directly proportional to conductor size. You can see जितना कम करंट होगा उतना ही कम कंडक्टर साइज लगेगा और जितना कम कंडक्टर साइज लगेगा उतना ही कॉस्ट कम मिलेगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज द मोर वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज द लेसर वी गेट द वैल्यू ऑफ करंट. और अगर करंट का वैल्यू कम होगा देन कंडक्टर साइज भी कम होगा. अगर कंडक्टर साइज कम होगा देन द ट्रांसमिशन टावर कॉस्ट का भी वैल्यू रिड्यूस होगा. ठीक है. ट्रांसमिशन टावर का कॉस्ट भी रिड्यूस होगा. नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ही कम करंट मिलेगा. जितना कम करंट मिलेगा उतना ही लाइन लॉसेस डिक्रीज हो जाएंगे बिकॉज आई स्क्वायर आर लॉसेस क्या हो रहे हैं, आई स्क्वायर आर लॉसेस डिक्रीज हो रहे हैं. अगर आई स्क्वायर आर लॉसेस डिक्रीज हो रहे हैं दैट मीन्स इफिशियंसी इज गोइंग टू increase. So you can see that efficiency is going to increase. And last one we have here is जितना ज़्यादा voltage होगा उतना ही कम current होगा. जितना कम current मिलेगा then del V, that means voltage drop उतना ही कम होगा because voltage drop is nothing but IZ. So जितना कम current उतना ही कम voltage drop और जितना कम voltage drop उतना ही कम वोल्टेज रेगुलेशन. दैट मीन्स हमें यहाँ इम्प्रूव्ड वोल्टेज रेगुलेशन मिलने वाला. ठीक है. एंड ऑल्सो वी हैव टू फॉर्मूलाज. दिस इज गोइंग टू बी द एरिया ऑफ कंडक्टर. जितना ज्यादा वोल्टेज का वैल्यू उतना ही कम कंडक्टर का साइज. जितना ज्यादा वोल्टेज का वैल्यू उतना ही कम वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर. ठीक है. सो आज तक हमें बस इतना पता था कि हम ट्रांसमिशन के लिए हायर एंड हायर वोल्टेज को यूज करते हैं. बट क्यों हायर वोल्टेज को यूज कर सकते हैं वो हमें आज पता चला. ठीक है. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. एंड लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर क्वेश्चन कि हमारा क्वेश्चन क्या था. मेन कंसिडरेशन हमें फाइंड आउट करना था. ठीक है. सो हमने अब तक देखा कि पावर लॉसेस भी रिड्यूस होता है. ठीक है. इफिशियंसी भी इंक्रीज होती है एंड पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी भी इंक्रीज होती है. बट जो मेन कंसिडरेशन होता है हायर एंड हायर ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन का. सो हम क्यों हायर एंड हायर ऑपरेटिंग वोल्टेज यूज कर सकते हैं. जो मेन कंसिडरेशन है इट इज नथिंग बट टू इंक्रीज द पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी. सो पी मैक्स को इंक्रीज करने के लिए हम वोल्टेज का वैल्यू ज्यादा रखते हैं. ठीक है. जब पी मैक्स इंक्रीज होगा देन ऑटोमेटिकली इफिशियंसी भी इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है. इफिशियंसी कैसे इंक्रीज होगा. पी मैक्स इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स वोल्टेज हमने इंक्रीज किया इसलिए पी मैक्स इंक्रीज हुआ है. अगर वोल्टेज हमने इंक्रीज किया करंट का वैल्यू क्या हो रहा है, करंट का वैल्यू रिड्यूस हो रहा है. अगर करंट का वैल्यू रिड्यूस हो रहा है दैट मीन्स आई स्क्वायर आर लॉसेस भी रिड्यूस हो रहे हैं. अगर आई स्क्वायर आर लॉसेस रिड्यूस हो रहे हैं देन इफिशियंसी इज गोइंग टू इम्प्रूव. सो जो मेन कंसिडरेशन है वो इंक्रीज द पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी है. ठीक है. और जो बाकी के इंक्रीज द इफिशियंसी और रिड्यूस द पावर लॉसेस ये सब बाय प्रोडक्ट्स. ठीक है. सो ऑप्शन नंबर सी इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. सो मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज a synchronous generator connected to an infinite bus delivers power at a lag power factor.
If its excitation is increased, then dash. So these are the options. So what we have been given, this question is related to machine. ठीक है. So synchronous generator connected है infinite bus पे and it is going to deliver power at lagging power factor. So synchronous generator lagging power factor साइड में दिया गया है और अगर हमने excitation को increase कर दिया, then what are the result we are going to get, that we have to discuss one by one. ठीक है, आपको पता होगा inverted V curve and V curve. So I am going to draw here. This is going to be inverted V curve and this is going to be V curve. ठीक है, this is going to be our excitation IF. IF से हम इसे डिनोट करेंगे. ठीक है, so this is going to be for power factor and this is going to be for armature current. ठीक है, and we have here lagging side as well as leading side. So this is going to be lagging side and this is going to be leading side and this is going to be UPF, unity power factor. Also we have here demagnetization and here we have magnetization. ठीक है, so this is going to be the curve related to synchronous generator. मैंने तो यहाँ आपको ड्रॉ करके दिखाया है and we have one figure जो ऑलरेडी ड्रॉ किया गया है. ठीक है, सो हम इसे डिस्कस करेंगे वन बाय वन. सो यहाँ क्या दिया गया है, दैट व्हेनेवर वी हैव टू चेंज द एक्साइटेशन कीपिंग प्राइम मूवर इनपुट कांस्टेंट, वी हैव टू केसेस. फर्स्ट वन इज फॉर जनरेटर एंड सेकेंड वन इज फॉर मोटर. ठीक है, दिस इज जनरेटर साइड एंड दिस इज फॉर मोटर साइड फिगर. सो यहाँ क्या दिया गया है, वी हैव दिस इज वी कर्व, दिस इज V curve and this is going to be inverted V curve. So V curve हम किसके बिटवीन ड्रॉ करते हैं, V curve हम ड्रॉ करते हैं आर्मेचर करंट वर्सेस फील्ड एक्साइटेशन. आर्मेचर करंट वर्सेस फील्ड एक्साइटेशन, दिस इज नथिंग बट V curve ऑफ जनरेटर. सो V curve से हम क्या इंडिकेट कर सकते हैं कि जैसे जैसे एक्साइटेशन करंट को हम इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे आर्मेचर करंट भी इंक्रीज होगा. जैसे जैसे एक्साइटेशन करंट इंक्रीज होगा वैसे वैसे आर्मेचर करंट भी इंक्रीज होने वाला है इफ वी आर एट यूपीएफ और नॉर्मल एक्साइटेशन पॉइंट. अगर हम एक्साइटेशन को डिक्रीज करेंगे देन ऑल्सो आर्मेचर करंट इज गोइंग टू इंक्रीज बिकॉज वी आर एट नॉर्मल एक्साइटेशन पॉइंट. अगर नॉर्मल एक्साइटेशन पॉइंट है और फील्ड एक्साइटेशन को हम डिक्रीज कर रहे हैं, दैट मीन्स आवर आर्मेचर करंट इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज. ठीक है, एंड ऑल्सो वन मोर थिंग टू बी नोटेड कि जनरेटर साइड में नॉर्मल एक्साइटेशन पॉइंट से तो राइट हैंड साइड में जितना भी कंसिडर करेंगे हम ग्राफ को, वो पूरा का पूरा लैगिंग पावर फैक्टर होने वाला है. ठीक है, एंड नॉर्मल एक्साइटेशन के लेफ्ट हैंड साइड में विल बी हैविंग लीडिंग पावर फैक्टर. ठीक है, ये जनरेटर साइड का केस है. एंड ऑल्सो नॉर्मल एक्साइटेशन के राइट हैंड साइड में दिस इज गोइंग टू बी द डीमैग्नेटाइजेशन. Here we are going to get demagnetization and on left hand side we are going to get magnetization. ठीक है, अगर किसी ने पूछा कि अगर हमने एक्साइटेशन को इंक्रीज कर दिया एंड वी आर एट लैगिंग पावर फैक्टर, सो क्या डीमैग्नेटाइजेशन होने वाला है या फिर मैग्नेटाइजेशन होने वाला है? सो देयर इज गोइंग टू बी डीमैग्नेटाइजेशन बिकॉज लैगिंग पावर फैक्टर है जनरेटर का, देन वी आर गोइंग टू गेट demagnetization if we are increasing field current. ठीक है, next one we have here is inverted V. So inverted V को हम power factor और excitation के बीच में draw करते हैं. ठीक है, this is going to be UPF. This is going to be UPF. We are going to get maximum power factor value at minimum armature current. जिस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम पावर फैक्टर मिल रहा है, दैट मीन्स यूनिटी पावर फैक्टर जिस पॉइंट पे मिल रहा है उसी पॉइंट पे हमें मिनिमम आर्मेचर करंट मिलने वाला है. ठीक है, सिमिलरली हमने यहाँ डीमैग्नेटाइजेशन लिखा था, हियर ऑल्सो आई एम गोइंग टू राइट डीमैग्नेटाइजेशन एंड हियर आई एम गोइंग टू गेट मैग्नेटाइजेशन. ठीक है, और डीमैग्नेटाइजेशन साइड में क्या होने वाला है, डीमैग्नेटाइजेशन साइड में जनरेटर इज गोइंग टू डिलीवर Q. Generator is going to deliver Q and on magnetization side
जनरेटर इज गोइंग टू एब्जॉर्ब क्यू, जनरेटर इज गोइंग टू एब्जॉर्ब क्यू, सो जो क्यू एब्जॉर्प्शन होने वाला है वो डिक्रीज हो जाएगा, एंड हियर क्यू डिलीवर होने वाला है वो इंक्रीज हो जाएगा, हियर इट इज गोइंग टू बी डिलीवर एंड दिस इज गोइंग टू बी एब्जॉर्ब। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो जैसे जैसे एक्साइटेशन को हम इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे पावर फैक्टर क्या होने वाला है, पावर फैक्टर डिक्रीज होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी मोर लैगिंग पावर फैक्टर, इट इज गोइंग टू बी मोर लैगिंग पावर फैक्टर। ठीक है, सो आई होप आपको जनरेटर के रिगार्डिंग अगर हमने एक्साइटेशन को चेंज कर दिया देन व्हाट आर गोइंग टू बी द रिजल्ट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्या क्या रिजल्ट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कमिंग टू मोटर। सो मोटर और जनरेटर दोनों में भी सेम केस है, बट जो चेंज होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी पावर फैक्टर। सो जहां लैगिंग पावर फैक्टर था जनरेटर साइड में, सेम वी हैव हियर लीडिंग पावर फैक्टर, वहां लैगिंग पावर फैक्टर था, यहाँ लीडिंग पावर फैक्टर है, एंड जहां लीडिंग पावर फैक्टर था वहां भी लैगिंग पावर फैक्टर आ गया, एंड सेम यहाँ भी डीमैग्नेटाइजेशन होने वाला है, एंड हियर इट इज गोइंग टू बी मैग्नेटाइजेशन। सो जैसे जनरेटर साइड में था पूरा का पूरा सेम मोटर साइड में भी है, बट ओनली वन चेंज इज पावर फैक्टर, जहां लीडिंग है वहां लैगिंग आएगा और जहां लैगिंग है वहां लीडिंग आएगा इन केस ऑफ मोटर। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एंड हियर ऑल्सो क्यू इज गोइंग टू इंक्रीज बिकॉज यहाँ क्यू डिलीवर हो रहा है। ठीक है, क्यू डिलीवर इंक्रीज होने वाला है इन केस ऑफ मोटर, अगर मोटर लीडिंग पावर फैक्टर है, मोटर का पावर फैक्टर कैसा है, लीडिंग पावर फैक्टर है, देन क्यू डिलीवर इज गोइंग टू इंक्रीज। अगर मोटर का लैगिंग पावर फैक्टर है देन इट इज गोइंग टू बी डिक्रीज इन रिएक्टिव पावर, और कैसा रिएक्टिव पावर है, ये रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करने वाला है, और जो एब्जॉर्प्शन होने वाला है वो डिक्रीज होने वाला है। ठीक है, एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देन कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, सो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, दैट व्हेनेवर वी आर एट लैगिंग साइड, हमें ऑलरेडी दिया गया है दैट पावर फैक्टर इज एट लैगिंग साइड, दिस इज गोइंग टू बी आवर लैगिंग साइड। ठीक है, इफ वी आर एट दिस पॉइंट, वी आर एट दिस पॉइंट ओनली, एंड अगर हमने एक्साइटेशन को इंक्रीज कर दिया, एक्साइटेशन को इंक्रीज करने के बाद क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं दैट वी हैव टू डिस्कस वन बाय वन। क्या टर्मिनल वोल्टेज में चेंजेस होने वाले हैं, सो नो, टर्मिनल वोल्टेज में कभी चेंजेस नहीं होंगे बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू इन्फिनाइट बस। सो व्हेनेवर सिंक्रोनस जनरेटर इज कनेक्टेड टू इन्फिनाइट बस, V is going to be constant. V is going to be constant. Frequency is also going to be constant. F is equals to constant. ठीक है, so V भी constant है, F भी constant है. Terminal voltage increases, no, it is going to be constant. Del value increases, so del value के लिए we have here one figure, so it is going to be IF and del value. This is going to be decrease. ठीक है, सो जैसे जैसे एक्साइटेशन को हम इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे डेल का वैल्यू हमें डिक्रीज मिलेगा, दैट मीन्स डेल इज गोइंग टू बी डिक्रीज, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. करंट डिलीवर्ड इंक्रीजेस, सो यस, जैसे जैसे हमने एक्साइटेशन को इंक्रीज कर दिया देन व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, वी आर गोइंग टू गेट इंक्रीमेंट इन आर्मेचर करंट. सो आर्मेचर करंट इज गोइंग टू इंक्रीज जैसे जैसे हमने एक्साइटेशन को इंक्रीज कर दिया. ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन नंबर सी इज ओनली गोइंग टू बी करेक्ट आंसर फॉर दिस. ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. एंड ऑल्सो वी हैव वन मोर चार्ट रिगार्डिंग दिस ऑल पैरामीटर्स. सो चलिए हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम जनरेटर साइड के लिए डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम मोटर साइड के लिए डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो मोटर साइड के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे बिकॉज नेक्स्ट क्वेश्चन सिंक्रोनस मोटर से रिलेटेड है. सो सबसे पहले हम जनरेटर से ही डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो जनरेटर के केस में क्या होने वाला है, व्हेन वी आर एट लैगिंग साइड. सो लैगिंग साइड में है, आपको पता है लैगिंग साइड में पावर फैक्टर क्या होने वाला है, पावर फैक्टर इज गोइंग टू डिक्रीज. ठीक है, सो पावर फैक्टर इज गोइंग टू डिक्रीज. नेक्स्ट
IA क्या होता है? IA इज नथिंग बट आर्मेचर करंट. सो आर्मेचर करंट क्या होने वाला है? आर्मेचर करंट इज गोइंग टू इंक्रीज. Q में क्या चेंजेस होने वाले हैं? Q इज गोइंग टू इंक्रीज बिकॉज Q डिलीवर इंक्रीमेंट हो रहा है ना. Q डिलीवर का दिस साइड इट इज गोइंग टू Q इंक्रीमेंट. ठीक है, Q डिलीवर इंक्रीज हो रहा है. एंड ऑल्सो वी हैव वन रिलेशन दैट वेन एवर पावर फैक्टर is increasing, Q is going to decrease. That means power factor is inversely proportional to Q. ठीक है. And what is going to be P? अगर excitation change होने वाला है, so it is going to be constant. It is going to be constant because excitation change हो रहा है. ठीक है, excitation change हो रहा है. एक्साइटेशन चेंज होने की वजह से Q चेंज होगा, P चेंज नहीं होगा. ठीक है. And last one we have here is del. So del is going to decrease. Del is going to decrease. ठीक है, this is at lagging side. And we are talking about leading side. So leading side में क्या होने वाला है? We have to consider at leading side first. ठीक है, we are at this point. We are at this point. ठीक है, and this is going to be UPF. सो हम इस पॉइंट पे हैं एंड वी हैव टू इंक्रीज एक्साइटेशन. अगर एक्साइटेशन हम इंक्रीज कर रहे हैं दैट मीन्स पावर फैक्टर क्या हो रहा है? पावर फैक्टर इंक्रीज हो रहा है. पावर फैक्टर इज गोइंग टू इंक्रीज. ठीक है. नेक्स्ट IA दैट मीन्स आर्मेचर करंट में क्या चेंजेस होने वाला है? आर्मेचर करंट, दिस इज गोइंग टू बी आर्मेचर करंट, राइट? सो आर्मेचर करंट इज गोइंग टू डिक्रीज. आर्मेचर करंट इज गोइंग टू डिक्रीज. Q में क्या चेंजेस होने वाले? एज पावर फैक्टर इज इंक्रीजिंग, Q इज गोइंग टू डिक्रीज बिकॉज Q एब्जॉर्ब का वैल्यू डिक्रीज होने वाला है. ठीक है. P का वैल्यू क्या है? P का वैल्यू ये कांस्टेंट होने वाला है बिकॉज हमने एक्साइटेशन को चेंज किया है, प्राइम मूवर के इनपुट को चेंज नहीं किया है. सो इट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट. एंड लास्ट वन वी हैव हियर इज डेल. सो डेल का वैल्यू जैसे जैसे एक्साइटेशन को इंक्रीज करेंगे डेल का वैल्यू हमें डिक्रीज मिलेगा. ठीक है. So I hope आपको ये समझ में आया होगा. So moving towards our next question. So our next question is a synchronous motor connected to an infinite bus takes power factor at a lagging power factor. If its excitation is increased, then dash. ठीक है. So what we have been given that there is synchronous motor which is connected to infinite bus and which is at lagging power factor. और अगर हमने एक्साइटेशन को इंक्रीज कर दिया देन व्हाट आर गोइंग टू बी द चेंजेस दैट वी नीड टू सी वन बाय वन. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ हियर फिगर V एंड इन्वर्टेड P. हमारे पास ऑलरेडी डायग्राम है बट स्टिल आई एम गोइंग टू ड्रॉ हियर. ठीक है. सो दिस इज गोइंग टू बी अवर V कर्व, सॉरी इन्वर्टेड V कर्व which represents power factor and this is going to be IF. Also we have V curve, this is going to be IA. IA is nothing but armature current. ठीक है. And this is the point of unity power factor. UPF, this is going to be leading side and this is going to be lagging side. So आपको पता है कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? हमें क्वेश्चन में दिया गया है that we are at lagging power factor. We are at लैगिंग पावर फैक्टर. सो अगर लैगिंग पावर फैक्टर है एंड एक्साइटेशन को इंक्रीज कर दिया देन व्हाट आर गोइंग टू बी द रिजल्ट? पावर फैक्टर में इंप्रूवमेंट होने वाला है. पावर फैक्टर में इंप्रूवमेंट होने वाला है. पावर फैक्टर इज गोइंग टू इंक्रीज. आर्मेचर करंट में क्या होने वाला है? आर्मेचर करंट इज गोइंग टू डिक्रीज. IA इज गोइंग टू डिक्रीज. ठीक है. सो दो पैरामीटर्स यहाँ से निकल के आए हैं बट स्टिल वी हैव सर्टन पैरामीटर्स. सो चलिए उसे हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन. सो नाउ विल डिस्कस ऑन मोटर साइड. ठीक है. सो मोटर साइड में क्या चेंजेस होने वाले हैं? एट लीडिंग साइड. सो लीडिंग साइड में पावर फैक्टर क्या होने वाला है? पावर फैक्टर इज गोइंग टू डिक्रीज. पावर फैक्टर इज गोइंग टू डिक्रीज. आर्मेचर करंट इज गोइंग टू इंक्रीज. Q is going to increase, P is going to be constant and del is going to be decrease. ठीक है.
Similarly, on lagging side of motor, so lagging side of motor क्या होने वाला है? Lagging side of motor is going to be power factor is going to be increase. क्यों power factor increase होने वाला है? Because this is UPF and this is going to be lagging side. अगर हमने excitation को increase कर दिया then power factor is going to increase. So that's why power factor is going to be increase and IA is going to decrease. IA क्यों decrease होने वाला है? So from figure we can be able to say कि IA क्यों decrease होने वाला है. ठीक है. Also reactive power. So reactive power में क्या changes होने वाले हैं? Reactive power is going to decrease. Reactive power is going to decrease. P is going to be constant and del is going to decrease one more time. ठीक है. So this is the chart related to change in excitation when we are keeping prime mover input constant. So I hope आपको सारा का सारा जो भी हमने जनरेटर एंड मोटर दोनों में जितने भी पैरामीटर्स डिस्कस किए एट लीडिंग साइड एज वेल एज लैगिंग साइड, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. सो चलिए हम क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करते हैं. टर्मिनल वोल्टेज में कोई चेंजेस होने वाला है क्या? नो, टर्मिनल वोल्टेज इज गोइंग टू बी कांस्टेंट. लोड एंगल इज गोइंग टू बी इंक्रीज, सो नो इट इज गोइंग टू डिक्रीज. डेल का वैल्यू क्या होने वाला है? डेल का वैल्यू डिक्रीज होने वाला है. ठीक है. पावर फैक्टर में क्या चेंजेस होने वाले हैं? पावर फैक्टर इज गोइंग टू इंक्रीज. पावर फैक्टर इज गोइंग टू इंक्रीज. सो ऑप्शन नंबर सी इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. सो मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज in pure LC parallel circuit under resonance condition, current drawn from the supply mains is dash. So यहाँ हमें क्या पूछा गया है? That there is one parallel LC circuit. So I am going to draw here. This is going to be L and this is going to be C. ठीक है. So there is parallel LC circuit and they are under resonance condition. So they are under resonance condition and we have to find current drawn from the mains. So आपको क्या find out करना है? We have to find out current. If you observe कि ये कौन सा figure है? So it is none other than ideal tank circuit. So it is ideal tank circuit. सो इस आइडियल टैंक सर्किट का Z इक्विवेलेंट वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है. यहाँ R का वैल्यू 0 दिया गया है. ठीक है. सो R का वैल्यू अगर 0 है देन Z इक्विवेलेंट इज नथिंग बट X इक्विवेलेंट ओनली. और ओमेगा का वैल्यू क्या आता है? ओमेगा इज नथिंग बट 1/√L/C फॉर आइडियल टैंक सर्किट. सो चलिए हम Z इक्विवेलेंट का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. सो Z इक्विवेलेंट is equals to X equivalent is equals to XL into minus of XC divided by XL plus minus of XC. So when you will solve this, what you are going to get? You are going to get XL minus of XC and XL minus of XC. But at resonance condition XL is equals to XC only. So आप XC के जगह XL सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. So I am going to substitute XC is equals to XL only. ठीक है. या फिर XL को XC के जगह आप सब्स्टिट्यूट कीजिए. Whatever you have to do, you can do. XL is equals to XC. So after substitution, you are going to get XL minus XL only. ठीक है. So XC को हमने रिप्लेस कर दिया XL से and we are going to get 1/0 which is nothing but infinity. Z equivalent का वैल्यू क्या है? Z equivalent is equals to infinity. That means there is going to be open circuit. There is going to be, this is going to be open circuit only. ठीक है. ये open circuit जैसा एक्ट करेगा and no current is going to flow from supply mains.
So option number D is only correct answer for this. So moving towards next question. So the question is, the current at a given point in a certain circuit may be given a function of time as I of t is equals to minus 3 plus t. The total charge passing between the point t is equals to 99 second and t is equals to 102 second. So I का वैल्यू यहाँ क्या दिया गया है, I is equals to minus 3 plus t. But you all know कि I of t is equals to dq by dt. I of t is equals to dq by dt. That means q is equals to integration of I dt. इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी. बट आई का तो वैल्यू हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है. सो आई का वैल्यू क्या दिया गया है वो आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा इन इक्वेशन नंबर 1. सो क्यू इज इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस टी डी टी एंड वी हैव टू इंटीग्रेट ओवर टी. और टी का वैल्यू क्या दिया गया है, टी का वैल्यू है फ्रॉम टी इज इक्वल्स टू 99 टू टी इज इक्वल्स टू 102. ठीक है. सो Q इज इक्वल्स टू, आप इसे सॉल्व कीजिए एंड यू आर गोइंग टू गेट 99 102 माइनस 3 डी टी प्लस इंटीग्रेशन 99 102 टी डी टी विच इज इक्वल्स टू माइनस 3 102 माइनस 99. ठीक है. इंटीग्रेशन करने के बाद विल बी हैविंग ओनली टी हियर. सो टी के जगह आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा बोथ द लिमिट्स प्लस टी स्क्वायर बाय 2 आएगा. ठीक है. यहाँ हमें क्या मिलेगा, टी स्क्वायर बाय 2. जब आप टी डी टी को इंटीग्रेट करेंगे देन यू आर गोइंग टू गेट टी स्क्वायर बाय 2. सो आई जस्ट राइट 1/2 आउटसाइड एंड टी स्क्वायर 102 होल स्क्वायर माइनस 99 whole square. So when you will solve all this, you are going to get 292.5 coulombs. So option number C is only correct answer for this. I hope आपको ये समझ में आया होगा and it is more of mathematical calculation. ठीक है. So चलिए moving towards next question. An alternator has a phase sequence of RYB for its phase voltage. In case the field current is reversed, the phase sequence will become dash. So हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, that we have one alternator और उस alternator का phase sequence RYB है. ठीक है. And if field current is reversed, then what is going to be the new phase sequence of that alternator we have to find out. So we have one chart regarding this. So चलिए उसे discuss कर लेंगे. So this is for synchronous machine. So phase sequence of 3-phase alternator can be reversed either by changing the field rotation if field is rotating or by changing the armature rotation if armature is rotating. So in short हमें यहाँ क्या दिया गया है, that अगर फील्ड का रोटेशन हो रहा होगा, अगर फील्ड रोटेट कर रहा होगा then we can be able to change the rotation of field by phase sequence. या फिर अगर आर्मेचर रोटेट कर रहा होगा then we can be able to change the rotation of armature by changing the phase sequence और vice versa. अगर फेज सीक्वेंस को चेंज करना है तो रोटेशन को चेंज करना होगा, अगर रोटेशन को चेंज करना है तो फेज सीक्वेंस को चेंज करना होगा. ठीक है. एंड इट डिपेंड्स कि रोटेट कौन हो रहा है, क्या फील्ड रोटेशन हो रहा है या फिर आर्मेचर रोटेशन हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज फेज सीक्वेंस डिपेंड्स ऑन द रोटार रोटेशन दैट इज प्राइम मूवर रोटेशन. ठीक है. फेज सीक्वेंस किस पे डिपेंड करता है, फेज सीक्वेंस रोटार रोटेशन पे डिपेंड करता है, दैट इज प्राइम मूवर रोटेशन. फेज सीक्वेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड करंट. अगर हम फील्ड करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दिए या फिर फील्ड के पोलैरिटीज को चेंज कर दिए देन फेज सीक्वेंस चेंज होने वाला नहीं है.
अगर हमें फेज सीक्वेंस को चेंज करना होगा तो हमें रोटर के रोटेशन को चेंज करना होगा, या फिर अगर प्राइम मूवर के रोटेशन को अगर आपने चेंज कर दिया तो फेज सीक्वेंस भी चेंज हो सकता है। बट फील्ड करंट को चेंज करके हम फेज सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। फील्ड करंट को चेंज करके हम फेज सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते हैं, ओनली बाय चेंजिंग द रोटेशन ऑफ रोटर और बाय चेंजिंग द रोटेशन ऑफ आर्मेचर अकॉर्डिंगली। कौन रोटेट हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और जो रोटेट कर रहा है अगर हमने उसके रोटेशन को चेंज कर दिया तो हमारा फेज सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, या फिर अगर हमने फेज सीक्वेंस ऑफ थ्री फेज ऑल्टरनेटर को चेंज कर दिया तो हमारा रोटेशन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो मूविंग बैक टू आवर क्वेश्चन, देयर इज चेंज इन फील्ड करंट। फील्ड करंट रिवर्स हो रहा है। ठीक है, बट हमने अभी क्या देखा था, हमने देखा था कि अगर फील्ड करंट को चेंज किया तो हमारा फेज सीक्वेंस चेंज नहीं होने वाला है। जो प्रीवियस आर वाई बी था वही आर वाई बी हमें मिलेगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज ओनली गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। So our next question is, an alternator has a phase sequence of RYB for 8 phase voltage. In case the direction of rotation of alternator is reverse, the phase sequence will become dash. So यहाँ हमें क्या दिया गया है, that we have been given a phase sequence RYB and there is going to be the change in the direction of ऑल्टरनेटर। दैट मीन्स रोटेशन को हमने रिवर्स कर दिया। अगर हमने रोटेशन को रिवर्स कर दिया तो क्या फेज सीक्वेंस में कोई चेंजेस होने वाला है? सो यस, देयर इज गोइंग टू बी द चेंज इन फेज सीक्वेंस अगर हमने रोटेशन को रिवर्स कर दिया। अगर हमने करंट के डायरेक्शन को, दैट मीन्स आर्मेचर करंट को अगर हमने रिवर्स कर दिया तो क्या हमें कोई चेंजेस मिलेंगे फेज सीक्वेंस में? सो नो, only by changing the direction of rotation then only we can be able to get the new phase sequence value. So यहाँ R Y B दिया गया है before reversal, ठीक है, but after reversal of the direction of rotation of alternator we are going to get R B Y. ठीक है, कैसे? This is going to be R, this is going to be Y and this is going to be B. ठीक है, so this is going to be एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हमने रोटेशन को चेंज कर दिया, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ऑल्टरनेटर को अगर हमने रिवर्स कर दिया तो जो फेज सीक्वेंस में चेंजेस होने वाले दैट इज गोइंग टू बी आर बी एंड वाई एंड दिस इज गोइंग टू रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, सो जो करेक्ट आंसर है फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो नाउ next question is, in the circuit the voltage and the current are given by V is equals to this one and I is equals to this one. The circuit is dash. So ये एक क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड we have 3 different sub questions. ठीक है, so सबसे पहले हमें तो फाइंड आउट करना है S का वैल्यू। S मतलब S अपेरेंट वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। S is equals to V I स्टार। सो V दिया गया है 10 प्लस J5 एंड I स्टार। I का तो वैल्यू दिया गया है बट I स्टार मतलब आपको कॉन्जुगेट करना होगा उसका। सो यू आर गोइंग टू गेट 6 माइनस J4। ठीक है, आप इसे सॉल्व कीजिए एंड आफ्टर सॉल्विंग व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, यू आर गोइंग टू गेट 60 माइनस 40J प्लस 30J plus 20. Then you are going to get 80 minus 10J. This is going to be the value of S. ठीक है, तो हमें यहाँ apparent power तो मिल गया। ठीक है, so this is going to be P and this is going to be Q. So I can write here S is equals to P plus JQ and also I can write S is equals to P minus JQ.
So when we can use this one and when we can use that one? Only in the case जब हमारे पास इंडक्टर होगा, ठीक है. Whenever we have inductor which is going to absorb reactive power, so this is going to be the equation, ठीक है. And next one is when we have capacitor. When we have capacitor, at that point we are going to get this equation, ठीक है. So this negative indicates for capacitor. This negative indicates for capacitor for supplying reactive power. अगर पॉजिटिव क्यू होगा तो इट इज गोइंग टू absorb reactive power. When it is negative Q, then it is going to deliver reactive power. This is going to be deliver reactive power. और reactive power कौन deliver कर सकता है? So capacitor can deliver reactive power. Also you can see this expression. We have S is equals to 80 minus 10J. So here you can see we have negative sign. So negative sign है, that means the circuit is capacitive circuit. So option number B is only correct answer for this. So moving towards next question. The power in the circuit is dash. So power हमने already find out कर दिया, but कौन सा power हमें find out करना है? We have to find out active power. So active power क्या था? S is equals to 80 minus 10J. So 80 is going to be active power. P is equals to 80 watts or kilowatts depending upon the value. So I am going to write here watts only. And Q is equals to minus 10 watts. Minus 10 watts. ठीक है. So 230 का आंसर आता है ऑप्शन नंबर C. And next one we have here is last question. प्रीवियस 2 to 9 क्वेश्चन से ही रिलेटेड है. हमें रिएक्टिव पावर का वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो रिएक्टिव पावर का वैल्यू क्या था? रिएक्टिव पावर का वैल्यू -10 था, ठीक है. सो ऑप्शन नंबर डी इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे. अगर आपको कोई डाउट होगा रिगार्डिंग दिस ऑल क्वेश्चंस और दिस CL वाधवा सीरीज, सो यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो सो दैट वी कैन मॉडिफाई अकॉर्डिंगली. अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए. एंड ऑल्सो प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल. मैंने ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, सो यू कैन ज्वाइन दैट चैनल एज वेल, ठीक है. सो थैंक यू गाइज.